एफएसएम से हुई पहले टिल 10th, और 10th के बाद मेरा +2 न्यू कॉन्वेंट से हुआ. अब +2 कंप्लीट करने के बाद ही मैं बाहर शिफ्ट हो गई थी. पहले तो मैं चंडीगढ़ गई. आई कंप्लीटेड माय डिप्लोमा इन जर्नलिज्म. देन आई वेंट टू दिल्ली एंड आई वर्कड देयर. I worked there for a while and then I started studying again. I started my bachelor's in business administration, and following that I completed my master's in the same expertise. So after that I came here during COVID, and I remember my mom asking me and a friend asking me if I would like to be a part of a music video. So the thing was that hesitation काफ़ी थी मेरे अंदर, because being a Kashmiri girl who has been raised here, who has seen all the conflicts, all the up downs, and all kinds of things that a normal Kashmiri go through. I'd seen that, and after seeing that, मुझे डर लग रहा था कि मुझे नहीं पता आगे लोग क्या बोलेंगे, वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, मुझे क्या क्या लिखेंगे, कुछ होगा तो नहीं. कितनी सारी चीज़ें थी जो मेरे दिल और दिमाग में चल रही थी. लेकिन मेरी ममा ने मुझे इतना सपोर्ट किया. मेरी ममा ने मुझे शी हैज़ मेड मी व्हाट आई एम टुडे. अगर मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ, आपके साथ बात कर रही हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज मेरी मॉम और मेरे डैड ने मुझे पीछे से इतना पुश किया है. देव गिवन मी सच अ पिलर दैट नोबडी इज़ इवन एबल टू ब्रिंग मी डाउन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. किसी में कोई कर ही नहीं सकता, बिकॉज द कॉन्फिडेंस आई हैव, द सपोर्ट आई हैव फ्रॉम माई फैमिली इज़ समथिंग विच नॉट एवरीबडी गेट्स. एक्टिंग का कैसे आपको लगा कि एक्टिंग में आप जा सकते हैं? जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, इट वाज विद आरजे उमर निसार, and eventually after the project we became friends. And after becoming friends, I asked him, I was kind of delusional for a long time ki what should I do, what should I actually do, should I go into entirely politics, should I go entirely into acting, should I go again and do my own thing that I had decided, maybe a normal 9 to 5 job, or should I go for a business. A lot of people and a lot of well-wishers told me that I'm really good at acting and I should proceed with it only. I should go with it only. Because if I'm on screen, I know what to deliver, how to deliver. I am a director's actor. Whatever the director asks of me, in the second moment he is there, I am there. So I started listening to people, and then I started working so hard. I started watching my own stuff कि कैसे हो रहा है, क्या किया है मैंने, and I felt no, I'm really good at it and I should pursue my career in this particular field, which is acting. तो पहला अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ मिली और कैसे मिली? Well, अगर बहुत पीछे जाए, बहुत like let's go very 10 years back. So I did some pageants, college freshers में I did pageants and freshers and everything that builded up a little bit of confidence inside of me. And then आगे जाके मैंने एक song, music song में मुझे काम मिला. उसके बाद I got a lot of hype in Kashmir. एंड देन माई फर्स्ट जो मेरे को पहला ब्रेक मिला, वो मुझे मिला सोनी लिव पे अवरोड 2 नाम से सीरीज़ है. उसमें मुझे मेरा पहला सेकेंडरी कैरेक्टर मिला. And afterwards, I didn't stop. I have done almost 3 films, which are big feature films, which are going to be released soon, almost like in these coming 3 or 4 years. And in all 3 of the movies, I am sort of either in the main lead or either I am in the primary cast. So बाकी छोटा मोटा जो है, I have done a lot of web shows, I have done a lot of short films, I have done a lot of songs that I don't even recall exact names of the songs now. So yeah, I have worked a lot.
तो कश्मीर की अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो कितना क्रिटिसिज्म यहाँ पे देखा आपने? सी इनिशियली बहुत ज़्यादा था बिकॉज़ 2020 में शायद इतनी ज़्यादा आज़ादियाँ नहीं थी लड़कियों के पास कि वो इतना ओपनली बात कर सके. आई थिंक अभी कश्मीर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गई है लोगों के नज़रिए में, लोगों का जो आउटलुक है चीज़ों को देखने का उसमें. तो आई थिंक अभी कम है लेकिन अभी बॉदर भी नहीं होता. तब ज़्यादा था, तब थोड़ा बॉदर होता था, लेकिन अब अगर ज़्यादा भी होगा अब बॉदर नहीं होता बिकॉज आई हैव लिव्ड इट, आई लिव विद इट, आई हैव एक्सेप्टेड. सी एक्सेप्टेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ a person, artist, anybody's life. Because the moment when you accept that yes, right, this is my thing, you in future would definitely go smoothly. बीट एनीथिंग. आपको 10 गालियाँ सुना रहे हैं ट्विटर पे लोग, आपको 20 अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं इंस्टाग्राम पे लोग, आपको लोग सराह रहे हैं, आपको लोग कॉपी कर रहे हैं, पीपल आर मेकिंग रील्स ऑन योर सॉन्ग्स, यू हैव बिकम समथिंग. सो दिस जर्नी हैज़ बिन अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी. बट इस रोलर कोस्टर राइड में मेरी मॉम डैड भी मेरे साथ घूम रहे थे. और ये जो सारा क्रेडिट जाता है कि मेरे मॉम डैड को जाता है. माई मॉम एंड माई डैड. तो जो रिसेंटली आपने सॉन्ग शूट किया है उसके बारे में थोड़ा बताइए, कितना उसमें स्ट्रगल रहा और क्या आपको थी उम्मीद कि इतना रिस्पॉन्ड आएगा उसका? देखिए, प्लान तो हम लोग मशरफस के लिए काफ़ी टाइम से कर रहे थे, पिछले 3 साल से तो कर ही रहे थे. तिनके लाके हम जोड़ रहे थे और बना रहे थे. और फिर फाइनली जब वो दिन आया तो उस दिन मुझे कुछ फील नहीं हुआ. मैं पूरा दिन बेयरफुट थी, शूट कर रही थी और ऐसे मैदान में कर रही थी विच वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल. मेरे पैर छिले हुए थे, कटे हुए थे, ठंड से दर्द हो रहा था, लेकिन उस टाइम पे फील नहीं हो रहा था क्योंकि एक आर्टिस्ट के तरीके से, एक आर्टिस्ट के तौर पर मैं ऑलरेडी लैला बन चुकी थी और लैला को दर्द नहीं हो रहा था. लैला के सिर्फ दिल में दर्द है अपने जानान को देखने का. लैला को फिजिकल पेन नहीं हो रहा, तो मुझे भी कोई पेन नहीं हो रहा था. स्ट्रगल्स बहुत सारे थे. मैं तकरीबन 1-2 हफ्ते तक आई डेंट वॉश माई हेयर बिकॉज वी वॉन्टेड दैट लुक. मैंने काफ़ी दिनों तक आई डेंट इवन टच माई फेस, आई डेंट वॉश माई फेस. हम लोगों ने वो सब किया जो मतलब जो हमें नहीं भी करना चाहिए था. वी क्रॉस्ड ईच लिमिट to make this possible, to make Mashrafas a solid thing in front of you guys. And now that it is getting so much of love from everybody, people are appreciating it, people are loving it, and I'm getting a lot of calls lately. Umar is getting a lot of calls, and see this is what we work for. This is something that we actually work for. Doing everything and then reaching to this point where I am able to speak in front of a camera about my life, that is the kind of success which I think I needed and my parents needed. Yeah, definitely मुझे बहुत दूर जाना है, this is not just it, but यहाँ तक भी पहुँचने में बहुत मेहनत लगी और वो मेहनत मैंने पूरी ईमानदारी और लगन के साथ किया, which people can see visibly. तो आपको लगता है कश्मीरी लड़कियों के लिए आप एक इंस्पिरेशन बनी हो, वो भी अब आगे आएंगी एक्टिंग में? Yes, because I know I literally ran these 5 years. इसमें जो बिगिनिंग के पहले 2-3 साल थे उसमें मैं दौड़ी हूँ ताकि मेरे पीछे जो जनरेशन आए, be it my my own sister, be it my own siblings, वो फेस ना करे, वो ट्रोलिंग, वो नेगेटिविटी, वो माहौल, वो सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट फेस ना करे जो मैंने किया. बिकॉज मैंने एक रास्ता बनाया सबके लिए. और अभी के टाइम पे देयर आर अ लॉट ऑफ लिटिल गर्ल्स हु टेल मी दैट दे वांट टू बिकम एन एक्टर लाइक मी, विच 5 years ago आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा कहता या कोई ऐसा समझता. लेकिन 5 साल में आई एम सो ग्लैड, आई एम हम्बल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, कि
मैं लोगों को इतना छू पाई हूँ, मैं यूथ को इतना छू पाई हूँ कि वो लोग मुझे एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं. दे इवन स्पीक टू मी, दे इवन आस्क मी, एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं हर किसी तक पहुँचूँ. आई ट्राई रिप्लाइंग बैक टू पीपल हु आई थिंक आर रेलिवेंट, हु आर माई फैंस, हु नीड हेल्प. I do everything as an artist because I have seen my struggles and I don't want my previous जो मेरा experience था वो उनके साथ रहे. गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि उनको आगे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए. सी इफ एक्टिंग इज फॉर देम, मैं बाकी चीज़ों का तो नहीं कह सकती, बट इफ यू एक्चुअली लाइक एक्टिंग, इफ यू नो दैट यू कैन डू इट, इफ यू नो दैट यू कैन टेक इट, ऑल द, देखो आपको जितनी तारीफें मिलेंगी ना उससे ज़्यादा आपको गाली गलोच, गुस्सा, अब्यूजेस, हैरेसमेंट, ट्रोलिंग, सब कुछ फेस करना पड़ेगा. और आपको पहले यू हैव टू मेक अप योर माइंड दैट यू आर entering this industry, you're entering this industry in a way that nothing is going to bother you. Only you and your work is what should be the main focus. Rest, do not listen to anybody, do not care about anything. Just love your parents as much as you can do, because parents एक ऐसी चीज़ है जिनकी दुआ लग गई ना तो you can achieve anything, but parents के support के बिना आप नहीं कर सकते हो. ये मेरा नज़रिया है. And girls, there is nothing that you cannot achieve. I don't think so. Now I don't think so. So go ahead, whatever your dreams are, whatever your goals are, go for it, chase. Don't stop anywhere. रीसेंट प्रोजेक्ट था या बिस्मा के जो इनिशियल में प्रोजेक्ट्स थे वो हमने किए. और सी कॉमन सी बात है, अगर मैंने इसके साथ इनिशियली प्रोजेक्ट किया एज डायरेक्टर और फिर से मैंने इसको म्यूज़िक वीडियो में अपने लॉन्च किया, लॉन्च नहीं मैं कह सकता हूँ कि अपीयर हुई मेरे नए वीडियो में भी, उसका मतलब है कि ओब्वियसली ये एक बात खुद ही बोलती है कि हाँ इसमें टैलेंट है. टैलेंट छोड़ो, मेहनत बहुत ज़्यादा करती है. मुझे याद है जब हम सेट पे शूट कर रहे थे, आप देखो ऐसे विंटर्स में फॉगी नाइट्स, आप देखो इन विंटर्स में आप अजान के बाद शूट शुरू करते हो और कोई बंदा सुबह अजान से लेकर फिर पूरे दिन ऐसे नंगे पाँव चल रहा है, कुछ नहीं पहना है, अपने शूज़ नहीं है, कुछ चप्पल नहीं है, कुछ नहीं है, उतनी सारी मेहनत आप देखो. और जब भी मैंने इसके साथ कोई प्रोजेक्ट किया, मैं ये कह सकता हूँ कि वो मेहनत, वो दिल से लग रहा है कि कुछ काम है, वो टास्क कंप्लीट करना. ऐसा नहीं है कि चलो जी आ गए, अपना दिन अपना टाइम निकल रहा है, नो. और यस, वही तो एक मिसाल होती है ना जहाँ पे लगता है कि ये इंसान कामयाब हो सकता है, जहाँ पर उसको वो प्यार अपने काम में दिखे. और मेरे हिसाब से एज अ डायरेक्टर ऑफ बिस्मा मीर मुझे लगता है कि इसमें वो काम का प्यार है, वो काम का प्यार मुझे इसमें दिखा, तभी तो इसके साथ इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए. नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको लगता है कि कोई सही से नहीं कर रहा है तो आप तो बोलते हैं ना फिर यार छोड़ दो. कितना रिस्पॉन्स मिला आपको खासकर पब्लिक की तरफ? देखो पब्लिक का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरी है, कलाम तो ये बहुत पुराना है और हम सारे पुराने कलाम जो है हम उनको रिक्रिएट करते हैं ताकि हम कश्मीरी लैंग्वेज को प्रिजर्व करें पहले. क्योंकि प्रिजर्व इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये भी लैंग्वेज उतनी प्रमोटेड नहीं है. प्रिजर्व करेंगे फिर प्रमोट भी करेंगे एक टाइम पे. और यहाँ पर ये रिक्रिएट किया हमने, ये पुराना एक कलाम,
और स्टोरी एक लैला मजनू जैसा एक मैं कह सकता हूँ वाइब है, जो कि लास्ट पे किताब होती है, एक स्टोरी है बुक की जो इसमें हमें दिखाई हुई है। मैंने डायरेक्ट किया ये, और उसके साथ साथ ही खुद भी मैं इस म्यूज़िक वीडियो में अपेयर हुआ हूँ। एज कैमियो मेरा था, मतलब बिस्मा का अपोजिट कैरेक्टर मैं कर रहा था। आई थिंक बिस्मा के बारे में बात करेंगे तो शी इज़ वेरी टैलेंटेड एंड डेडिकेटेड एज वेल। आगे भी ऐसे कंटिन्यू रहेंगे वीडियोस आपके? सी इट्स नॉट जस्ट वन म्यूज़िक वीडियो। मश रिकॉर्ड्स का इनिशिएटिव है कि हम 101 कश्मीरी आर्टिस्टों को लॉन्च करें, जिनमें से आपने देखा होगा। सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि जो ये गाना है जिसने ये गाया शिवानी मतियाल ने, शी इज़ नॉट अ कश्मीरी। कश्मीरी में गाया उसने ये गाना, और हम जब कश्मीरी को बोलते हैं, कश्मीर में क्या बोलते हैं यार, उर्दू करेंगे, हिंदी करेंगे, लेकिन अपनी मदर लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, ये हमारी ज़बान जो है कितनी इंपॉर्टेंट है। आगे भी हमारे म्यूज़िक वीडियोस आने वाले हैं, उन पे काम चल रहा है, और ऑब्वियसली हम तो वही रुकने वाले हैं ही।